ایران کا عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر حملہ، عین الاسد اور تاجی ایئر بیس پر مندرہ میزائل داغے گئے۔ ایران کا 80 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق حملے میں امریکہ کے ہیلی کاپٹرز اور فوجی ساز و سامان تباہ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حملے کی خود نگرانی کی۔ خطاب میں کہا، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، امریکہ سے قاسم سلیمانی کے قتل کا بدلہ لیا ہے، دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی کارروائی پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ایران اس سے کئی گنا بڑا حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آل از ویل، امریکی اڈوں پر ایران کے حملے کے بعد ٹرمپ کا رد عمل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ میں کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، نقصانات کا تخمینہ لگا رہے ہیں، ہمارے پاس دنیا کی سب سے طاقتور مسلح افواج ہے۔ پاسداران انقلاب کے حملے کے بعد وائٹ ہاؤس میں امریکہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قوم سے خطاب مؤخر۔ امریکی ایئر بیس پر حملے کے بعد عراق میں جنگی طیاروں کی پروازیں۔ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، ایران کشیدگی کو بڑھانا نہیں چاہتا، امریکہ کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، خطے کے مختلف وزرائے خارجہ سے رابطے ہوئے ہیں، سب کی یہی کوشش ہے کہ خطے میں کشیدگی نہ ہو۔ خطہ جنگ اور کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا، جنگ کے اثرات خطے کی معیشت پر نقصان دہ ہوں گے۔ امریکہ میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ جنگ کا حامی نہیں ہے۔ مشرقی وسطی کے سنگین صورتحال کے پیش نظر ملیشیا، سنگاپور اور چین نے اپنی قومی ایئر لائنز کو ایران کی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا۔ فلپائن نے اپنے شہریوں کو عراق سے نکلنے کی ہدایت کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ عراق جانے والے پاکستانی شہری محتاط رہیں۔ امریکی ایئر بیس پر حملے کے فوری بعد جنرل قاسم سلیمانی کی تدفین کر دی گئی۔ جنرل قاسم سلیمانی کو آبائی علاقے کرمان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ہزاروں افراد نے تدفین میں شرکت کی۔ گزشتہ روز بھگدڑ کے باعث قاسم سلیمانی کی تدفین روک دی گئی تھی۔ بھگدڑ کی وجہ سے 56 افراد جاں بحق جبکہ 200 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا گیا۔ ایئر فورس ترمیمی بل، نیوی ایکٹ ترمیمی بل بھی منظور۔ سینٹ میں تینوں بل وزیر دفاع پرویز خٹک نے سینٹ میں پیش کیے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے اجلاس جمعے تک ملتوی کر دیا۔ پاکستان آج FATF کو جواب جمع کرائے گا۔ FATF نے 150 سوالات 20 دسمبر کو ارسال کیے تھے۔ پاکستان اور FATF کے مذاکرات کا اگلا دور 21 جنوری سے چین میں شروع ہوگا۔ امریکہ اور ایرانی کشیدگیوں کے عالمی منڈیوں میں اثرات۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں $22 کا اضافہ، سونے کی فیکس اونس قیمت 1596 ہو گئی۔ خام تیل کی قیمت 64 سینٹ اضافے سے $63.34 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بھی مندی سے کاروبار کا آغاز، اوپن مارکیٹ میں ڈالر مہنگا ہو گیا، ڈالر کی قیمت $155.13 ہو گئی۔ ایران کے بعد عراق کا امریکہ سے بدلہ لینے کا اعلان۔ عراقی ملیشیا کے سربراہ کا کہنا ہے، ایران نے اپنا رد عمل دے دیا، اب عراق کے پہلے جواب کا وقت ہے، عراق کا بدلہ ایران سے کم نہیں ہوگا۔ یہ ٹک ٹاک حکومت ہے، ٹک ٹاک کے ذریعے ہی گرے گی، سعید غنی کا دعویٰ۔ کہا، نااہل وزراء کا کام یہی ہوتا ہے کہ ویڈیو بناؤ اور وائرل کرو۔ شہریار آفریدی نے کہا، فوٹیج اور ویڈیو میں فرق ہوتا ہے، اب وہی بتائیں گے حریم اور ترمیم میں کیا فرق ہے۔ PTI کو بے نظیر انکم سپورٹ کے 1,500 لوگوں سے اعتراض ہے تو سزا لاکھوں کو نہ دی جائے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے غیر مستحق افراد کی فہرست جاری، اعلیٰ سرکاری افسران بھی شامل۔ دستاویزات کے مطابق چاروں صوبوں سے گریڈ 17 سے 21 تک کے افسران، 2543 افسران مستفید ہوئے۔ حافظ آباد میں دم گھٹنے سے 2 مزدور جاں بحق۔ حافظ آباد ماسکو رائس مل کے کمرے میں کوئلہ انگیٹھی جلانے سے گیس بھر گئی تھی، جس کے باعث دم گھٹنے سے 2 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی مرکزی کال پر MUJ کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ ودھن پوٹا چوک سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے جاری کردہ 5 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کو منظور کیا جائے۔
मुरीद के और रयानपुरा में होने वाली हालिया बारिश ने इंतजामिया की मुबैना गफलत और नाअहली के पोल खोल दिए। नाकारा सीवरेज सिस्टम की बंदिश के सबब गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गंदे पानी से उठने वाले ताफुन और बदबू ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ईरान ने इराक पर मौजूदा अमेरिका के 2 फौजी अड्डों को मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 80 फौजी हलाक हो गए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक हमले में 80 अमरीकी दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि हेलीकॉप्टर और फौजी साजो सामान को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अमेरिका के महकमा दिफा के मुताबिक ईरान से 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिनसे अल-नबार और अरबील में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका के खिलाफ शाहिद सुलेमानी ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है और अगर अमेरिका मज़ीद फ़ौजियों को हलाकत से बचाना चाहता है तो उसको अपनी फ़ौजें निकालनी पड़ेंगी। हमले की निगरानी खुद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हमने दुनिया पर वाज़े कर दिया कि किसी भी किस्म की कार्रवाई पर खामोश नहीं बैठेंगे। हमने कोई ज़्यादती नहीं की। अमेरिका से कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लिया है। उन्होंने अमेरिका को वाज़े किया कि ईरान इससे कई गुना बड़ा हमला करने की सलाहियत रखता है। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि हम अपने दिफा में किसी भी किस्म की कार्रवाई से दरेग नहीं करेंगे। ईरानी कौम की एक बेहतरीन और मजबूत तारीख है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में अपने मुतमईन होने का इजहार किया है। ट्वीट में कहा कि सब कुछ ठीक है, नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर मुसल्लह अफवाज है। ईरान के सरकारी ज़राए अबलाग का कहना है कि अमरीकी सदर का सब ठीक है का बयान नुकसान को छुपाने की कोशिश है और अगर अमरीका ने हमला किया तो ईरान की नज़र में अमरीका के 100 टारगेट हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के हमलों से होने वाले नुकसान की तफसीलात जमा की जा रही हैं। ईरान के अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब करना था, जिसको फ़िलहाल मुअख्खर कर दिया गया। व्हाइट हाउस के गिर्द सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया गया है। मशरक़ी वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बाद वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमरीका को भी मोहतात रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ का बयान दानिशमंदी का मजहर था, जिससे लगता है कि वो कशीदगी में मज़ीद इजाफा करना नहीं चाहते। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम सब कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये खित्ता एक और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है और समझता है कि इन मामलात को गुफ्त व शनीद के ज़रिए हल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सूरत हाल को सुधारने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, सिक्योरिटी काउंसिल और आलमी बरादरी को फिलफौर अपना किरदार अदा करना चाहिए। मलाइशिया, सिंगापुर और चीन ने अपनी कौमी एयरलाइंस को ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया है, जबकि फ़िलिपाइन ने अपने शहरियों को इराक़ से निकलने की हिदायत कर दी है। अमरीकी फ़ेडरल एविएशन ने मुसाफिर तैयारों को मशरक़ी वस्ता की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आयशा फ़ारूकी ने ट्विटर पर लिखा कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र इराक़ जाने वाले पाकिस्तानी शहरी मोहतात रहें। हम इराक़ में पहले से मौजूद शहरी और पाकिस्तानी सफारत खाने से मुसलसल राबते में हैं। जनरल कासिम सुलेमानी को आबाई इलाके किरमान में सुपुर्द खाक किया गया है। तदफीन में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। गुज़िश्ता रोज़ भगदड़ के बायस कासिम सुलेमानी की तदफीन रोक दी गई थी। भगदड़ के नतीजे में 56 अफराद जाँ बहक जबकि 200 के करीब जख्मी हुए थे। ईरान ने इराक़ में अमरीकी एयरबेस पर हमला किया, जिसके नतीजे में अमरीका के 80 फौजी हलाक हुए। अमरीकी एयरबेस पर हमले के फौरी बाद जनरल कासिम सुलेमानी की तदफीन कर दी गई। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में मज़ीद तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। बिल वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने पेश किए। सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की जानिब से आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में मज़ीद तरमीम करने की तहरीक पेश की गई, जिन पर एक एक करके वोटिंग की गई और ऐवान ने कसरत राय से उनकी मंजूरी दे दी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया है।
पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान के 22 नुकात पर आज जवाब भेजेगा। FATF ने 150 सवालात 20 दिसंबर को अरसाल किए थे। ज़राए के मुताबिक इस ज़म्न में मुताल्लिका तमाम महकमों ने अपने जवाबात फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को अरसाल कर दिए हैं, जो आज बजरिया ईमेल पाकिस्तान का जवाब FATF को अरसाल करेगा। इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वफाकी वज़ीर हम्माद अजहर करेंगे। पाकिस्तान और FATF के मुज़ाकरात का अगला दौर 21 से 24 जनवरी से चीन में शुरू होगा। अमेरिका और ईरान कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $22 का इजाफा देखा गया है। ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने की फ़ी औंस कीमत $1596.30 है, जबकि खाम तेल की कीमत 64 सेंट इजाफे से $63.34 फ़ी बैरल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ के आगाज़ पर मंदी का रुझान देखा गया। आज स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज़ 41,904 की सतह से हुआ और इब्तदाई एक घंटे के दौरान 100 इंडेक्स में 169 पॉइंट्स की कमी देखी गई। माहिरीन के मुताबिक खत्ते में अमेरिका और ईरान की कशीदगी के मनफी असरात दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स की तरह पाकिस्तान की मार्केट पर भी पड़ रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर की कीमत 155 रुपये 13 पैसे हो गई। ईरान के बाद इराकी मलेशिया ने भी अमेरिका से जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। सरबराह इराकी मलेशिया का कहना है कि अमेरिका से अपने शोहदा का बदला लेने के लिए तैयार हैं। अमेरिका से इराक का इंतकाम ईरान से कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपना रद्द अमल दे दिया, अब इराक की तरफ से जवाब देने का वक्त है। वज़ीर इत्तलात और मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत टिकटॉक से ही बनी है और ये टिकटॉक से ही गिर जाएगी। वफाकी वज़रा का काम रोज़ाना एक टिकटॉक बनाना और शाम को 50,000 लाइक होने पर जश्न मनाना है। शहरियार आफरीदी को फुटेज और वीडियो का अच्छी तरह मालूम है। उनसे ही पूछा जाए कि हरीम और तरमीम में क्या फ़र्क है। 18वीं तरमीम के बाद काबीना का हजम छोटा हुआ है, इसलिए वज़ीर आला के पास मुतादिद वजारतों के कलमदान हैं। 1 से 1,500 अफराद पर एतराज़ को जवाज़ बनाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 8 लाख अफराद पर पाबंदी लगाना किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। उसकी आड़ में PTI को सियासी मकासद किसी सूरत हासिल नहीं होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले गैर मुस्तहिक अफराद में ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 21 तक के सरकारी अफसरान भी शामिल रहे। चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी बराए एहसास प्रोग्राम सानिया निश्तर ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 8,20,000 गैर मुस्तहिक अफराद को निकालने का ऐलान किया था। BISP से निकाले गए अफराद को फहरिस्त के ज़रिए इंकशाफ हुआ कि निकाले जाने वालों में आला सरकारी अफसरान भी शामिल थे। दस्तावेज़ात के मुताबिक चारों सूबों और वफाक से आला सरकारी अफसरान भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे थे। हाफिजाबाद के इलाके जलालपुर भटिया में कायम मैस कोर राइस मिल में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में आतिफ अली और नुमान अली ने सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए कमरे में कोयला जलाकर आग लगाई, मगर कमरे में भरने वाले गैस ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। कमरे में गैस भरने से दोनों मजदूर दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वाला आतिफ अली आलमपुरा जबकि नुमान अली जलालपुर कहनाकार रिहायशी था। दोनों मजदूरों की लाशें अस्पताल मुंतकिल की गईं, जहां से लाशें वुरसा के हवाले कर दी गईं। मेहराबपुर में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से चलाई जाने वाली सहाफ़ी बचाओ तहरीक के पहले मरहले में 8 जनवरी को मुल्की सतह पर यौम मुतालबात के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। मेहराबपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से मेहराबपुर प्रेस क्लब से रैली निकाली गई, जो कि शहर के मुख्तलिफ चौक से होती हुई मेहराबपुर प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से जारी करदा 5 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड को मंजूर किया जाए। चार्टर ऑफ डिमांड में बदतरीन मीडिया बहरान और उसके हल के लिए पार्लिमानी कमीशन की तश्कील, आज़ादी इजहार और प्रेस पर आयद एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियों का खात्मा, मीडिया कारकुनों की बरतरफियाँ, तनख्वाहों में कटौतियाँ बंद करना और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना समेत दीगर नुकात शामिल हैं। तहसील म्यूनसिपल कमेटी मुरीद के इंतज़ामिया की मुबैना गफलत और नाअहली के बायस शहर मुरीद के और रेयानपुरा और मस्जिद रज़ाए हबीब का सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया है, जिसमें नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालिया बारिशों की वजह से शहर भर का गंदा पानी गलियों में नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है।
جس سے اٹھنے والا تعفن اور بدبو نے علاقہ مکینوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ لوگوں کی معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کرنے کے باوجود بھی انتظامیہ کے کانوں پر تاحال جوں تک نہیں رہی۔ علاقہ مکینوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے بلا تاخیر فوری نوٹس لے کر سنگین اس مسئلے سے نجات دلائی جائے۔ نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔